Now today we are going to see our next topic, system of forces. Now in our mechanics of solid, our second chapter, coplanar concurrent forces. So before we going to see our next topic, first of all, what is coplanar, what is concurrent, and what is forces. So first of all, introduction, we saw force. Force किसे कहेंगे? Agent which produce or tends to produce or destroy or tends to destroy motion of a body is called force. force किसे बोलेंगे कि किसी भी मटेरियल को हम, अब सपोज कोई मूवेबल है और कोई स्टेडी मटेरियल है, तो स्टेडी मटेरियल पे हम कोई ऐसा एजेंट प्रोड्यूस करेंगे कि वो स्टेडी है, वो मूविंग होगा, और जो मूविंग है वो स्टॉप हो जाएगा. सो इट इज़ कॉल्ड फोर्स. इट इज़ ड्यू टू फोर्स. सो यूनिट ऑफ फोर्स is Newton and it is vector quantity because it has magnitude and direction. Now we saw characteristic of forces. So there are different type of characteristics like magnitude, direction, nature and point of application. So this is characteristic of forces. Then type of forces like contact force, body force, point force, external force or internal force, action and reaction, wind force, friction and friction force, hydrostatic force, cohesion adhesion and thermal forces. So there are different type of forces. And next, mass and weight. So what is mass? It is matter contained in a body, it is called mass. And what is weight? It is the gravitational force acting at the center of gravity of the body, it is called weight. So W equal to M into G. Now next is the system of forces. So what is system of forces? So when two or more forces acting on a body, they are called form a system of body. कि सपोज हमारे पास कोई प्लेन बॉडी है या सपोज कोई बॉडी पे डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस लग रहा है, जैसे कि टू और टू से ज़्यादा, ठीक है, दो और दो से ज़्यादा फोर्स एक्ट हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सिस्टम ऑफ फोर्सेस. So there are different type of system of forces. The first is coplanar force. The forces whose line of action lie on the same plane are known as coplanar forces. ठीक है, तो सपोज हमारे पास कोई ऐसा प्लेन है, ठीक है, ए बी सी डी, तो उस प्लेन पे, ठीक है, फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं जैसे कि P1, P2 एंड P3. ठीक है, तो कोप्लानर फोर्स किसे बोलेंगे? द फोर्सेस उस लाइन ऑफ एक्शन लाई ऑन द सेम प्लेन. जो एक्शन है फोर्स की वो सेम प्लेन में लाई हो रहा है, ठीक है, सो इट इज़ कॉल्ड कोप्लानर फोर्सेस. क्या बोलेंगे? कोप्लानर फोर्सेस. तो आप फिगर में देख सकते हो, हियर फोर्सेस P1, P2, P3 आर कोप्लानर फोर्सेस. एक ही प्लेन के अंदर है, ठीक है, लाइन ऑफ एक्शन लाई ऑन दी सेम प्लेन. को मीन्स सेम, ठीक है, को मीन्स सेम, ठीक है, सेम प्लानर फोर्सेस कि सेम प्लेन में एक्ट हो रहा है. सो इट इज़ को मीन्स सेम. सो प्लानर मीन्स अलोंग अ प्लेन. प्लानर मीन्स अलोंग अ प्लेन. नाउ नेक्स्ट, concurrent forces. The forces which meet at a one point are known as concurrent forces. So second is concurrent forces. कि सपोज कोई प्लेन है, आप देख सकते हो ये प्लेन, उस प्लेन पे फोर्स एक्ट कर रहा है P1, P2 एंड P3. दे मीट एट अ वन पॉइंट, एक पॉइंट पे मीट हो रहा है, मिल रहा है. सो इट इज़ concurrent forces. સંગામી બળો, બરાબર, ગુજરાતીમાં શું કહેવાશે? સંગામી બળો, કે એક જગ્યાએ એનું સંગમ થાય છે, મિલન થાય છે. સો ઇટ ઇઝ concurrent forces. So here forces P1, P2, P3 are concurrent forces. Now collinear forces. थर्ड इज collinear forces. ठीक है, लीनियर, एक ही लाइन पे एक्ट हो रहा है. सो इट इज़ collinear forces. So the forces whose line of action lie on the same line are known as कोलिनियर फोर्सेस. आप देख सकते हो फिगर में, ये P1, P2 एंड P3 एक ही सेम लाइन में एक्ट हो रहा, लाई हो रहा है. सो इट इज़ कोलिनियर फोर्सेस. सो फोर्सेस P1, P2, P3 आर कोलिनियर फोर्सेस. नाउ सेकंड कोप्लानर कंकरेंट फोर्सेस. ठीक है, द फोर्सेस
which meet at a one point and their line of action lie lie on the same plane are known as concurrent forces. ठीक है, द फोर्सेस विच मीट एट अ वन पॉइंट, एक पॉइंट पे मिल रहा है, आप देख सकते हो सपोज कि ये ओ पॉइंट पे मिल रहा है P1 P2 एंड P3, ठीक है, एंड लाइन ऑफ एक्शन लाई ऑन द सेम प्लेन, ठीक है, सेम प्लेन में लाई हो रहा है, एक ही प्लेन में. સો ઇટ ઇઝ કોપ્લાનર કન્કરન્ટ ફોર્સિસ. એક જ સમતલમાં છે અને સંગમ થાય છે એક જગ્યાએ. સો ઇટ ઇઝ કોપ્લાનર કન્કરન્ટ ફોર્સિસ, સમતલીય સંગામી બળો. બરાબર છે. ધ ફોર્સિસ વિચ મીટ એટ અ વન પોઈન્ટ and their lines of action are also lie on the same plane are known as coplanar concurrent forces. ठीक है, here forces P1 P2 P3 are coplanar concurrent forces. नेक्स्ट इज कोप्लानर नॉन कंकरेंट फोर्सेस. ठीक है, वाइस वर्सा कि एक प्लेन में लाई नॉन कंकरेंट, ठीक है, कि एक प्लेन में होगा लेकिन मीट नहीं करेगा किसी भी एक पॉइंट पे. सो इट इज़ कोप्लानर नॉन कंकरेंट फोर्सेस. द फोर्सेस हुज लाइन ऑफ एक्शन लाई ऑन दी सेम प्लेन. एक ही प्लेन में फोर्स एक्ट कर रहा है बट दे डू नॉट मीट एट अ वन पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे मीट नहीं हो रहा है. सो इट इज़ कॉल्ड कोप्लानर नॉन कंकरेंट फोर्सेस. ठीक है, आप देख सकते हो फिगर में P1 P2 P3 P4, ठीक है, लाई ऑन अ सेम प्लेन, एक ही प्लेन में है, ये प्लेन हो रहा है बट दे डू नॉट मीट एट अ वन पॉइंट. सो इट इज़ कॉल्ड कोप्लानर नॉन कंकरेंट फोर्सेस. नाउ नॉन कोप्लानर कंकरेंट फोर्सेस, ठीक है, द फोर्सेस हुज लाइन ऑफ एक्शन डू नॉट लाइन ऑन अ प्लेन. आप फिगर में देख सकते हो देर आर 3 प्लेन, ठीक है, 1 2 3 प्लेन. फोर्स P1 एक्ट हो रहा है, P2 एक्ट हो रहा है, P3 एक्ट हो रहा है, ठीक है, एक पॉइंट पे मिल रहा है लेकिन उसका जो प्लेन है जो प्लेन लाई हो रहा है, जे फोर्स जो प्लेन में लाई हो रहा है वो डिफरेंट है. सो इट इज़ नॉन कोप्लानर कंकरेंट फोर्सेस. सो द फोर्सेस हुज लाइन ऑफ एक्शन डू नॉट लाई ऑन द सेम प्लेन but they meet at a one point are called non-coplanar concurrent forces. Now next is non-coplanar non-concurrent forces. So the forces whose line of action do not lie on the same plane and they do not meet at a one point are known as non-coplanar concurrent forces. ठीक है, आप फिगर में देख सकते हो, ठीक है, there are different type of plane, ठीक है, forces acting on a different type of plane, ठीक है, they do not meet at any point. So it is non-coplanar non-concurrent forces. So the forces whose line of action do not lie on the same plane and they do not meet at a one point are known as non-coplanar non-concurrent forces. Then like parallel forces. So the forces whose line of action are parallel to each other and all of them act in the same direction are known as like parallel forces. ठीक है, the forces whose line of action are parallel to each other, ठीक है, એકબીજાને સમાંતર હોય છે, બરાબર, ફોર્સ એને શું કહેવાય છે, like parallel forces and the same direction, उसकी डायरेक्शन सेम होगी. ठीक है, ये देखो डाउनवर्ड है तो सब डाउनवर्ड हो गए, ठीक है, वर्टिकल तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल हो गए, अपवर्ड तो अपवर्ड हो गए. सो इट इज़ पैरेलल टू ईच अदर एंड सेम डायरेक्शन. सो इट इज़ लाइक पैरेलल फोर्सेस. देन अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, द फोर्सेस हुज लाइन ऑफ एक्शन आर पैरेलल टू ईच अदर बट ऑल ऑफ देम डू नॉट एक्ट इन द सेम डायरेक्शन. ठीक है, डायरेक्शन अलग चेंज होगी. ठीक है, ये जा रहा है लेफ्ट, ये राइट लेफ्ट राइट. ठीक है, पैरेलल टू ईच अदर बट do not act in a same direction. So it is unlike parallel forces. So there are different type of system of force, the coplanar force, then concurrent force, collinear force, coplanar non-concurrent force, non-coplanar concurrent force, non-coplanar non-concurrent force, then like parallel and unlike parallel force. ठीक है, तो टाइप्स कैसे लिखेंगे, हमारा चैप्टर क्या है, कोप्लानर कंकरेंट फोर्स, कोप्लानर कंकरेंट फोर्स. ठीक है, तो फर्स्ट हम कैसे लिखेंगे, फर्स्ट कोप्लानर फोर्स,
कोप्लानर फोर्स, सेकंड कैसे लिखेंगे, कंकरेंट फोर्स, देन थर्ड इज कोप्लानर कंकरेंट फोर्स, कोप्लानर कंकरेंट फोर्स, देन आफ्टर यहाँ पे नॉन लगा दो तो नॉन कोप्लानर कंकरेंट फोर्स, ये कैंसिल हो, यहाँ पे नॉन लगा दो तो कोप्लानर नॉन कंकरेंट फोर्स, देन नॉन कोप्लानर नॉन कंकरेंट फोर्स। तो आप टाइप ऑफ फोर्सेस लिख सकते हो। देन आएगा कोलिनियर फोर्स, देन लाइक पैरेलल फोर्स, अनलाइक पैरेलल फोर्स, ठीक है। सो टाइप्स लिख सकते हो आप इजीली इन दिस वे। So now next is spatial forces. So forces acting in the space are known as spatial forces, ठीक है। पार्शियल फोर्सेस किसे बोलेंगे, जो फोर्स लगेगा स्पेस में, ठीक है, तो इट इज़ कॉल्ड स्पाशियल फोर्सेस। देन स्पाशियल कंकरेंट फोर्सेस, द फोर्सेस एक्टिंग इन अ स्पेस बट मीटिंग एट अ वन पॉइंट आर नोन एज स्पाशियल कॉन्करेंट फोर्सेस, ठीक है। द फोर्सेस, तो फोर्स कहाँ पे लग रहा है, स्पेस में, बट दे मीट एट अ वन पॉइंट, एक पॉइंट पे मिलेगा, ठीक है। सो इट इज स्पाशियल कंकरेंट फोर्सेस। फॉर एग्जांपल फोर्सेस एक्टिंग इन द स्ट्रिंग ऑफ द पैराशूट, ठीक है, तो पैराशूट की स्ट्रिंग है ये, यहाँ पे फोर्स लगेगा एंड मीटिंग एट अ वन पॉइंट, ठीक है। सो इट इज स्पाशियल कंकरेंट फोर्सेस। सो स्पाशियल concurrent forces can be explained by Cartesian plane are shown below, ठीक है। तो in this way spatial concurrent forces act on a material. Now spatial non-concurrent forces like force system. So this type of force system consists of force acting in a space but are parallel and act in a same direction, ठीक है। तो it is spatial non-concurrent force के ये टाइप के फोर्स में क्या होगा, फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्पेस, स्पेस में फोर्स लगेगा बट पैरेलल एंड एक्ट इन अ सेम डायरेक्शन, ठीक है। तो सपोज कोई हमारे पास 100 स्टोरी बिल्डिंग है, ठीक है, कि बॉटम पे कोई पार्किंग जैसा प्रोवाइड किया है और ये बिल्डिंग है। सो यहाँ पे जो फोर्स एक्ट होगा, ठीक है, बेसमेंट पे, सो इट इज़ कॉल्ड स्पाशियल नॉन कंकरेंट फोर्स, ठीक है। सो now next spatial non-concurrent force, unlike force system, so this type of force system consists of forces acting in a space parallel but act in a opposite direction. So this is spatial non-concurrent force unlike force system. Now next, principle of physical independence of forces. So if number of forces acting simultaneously on a particle, ठीक है, कि नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट हो रहा है P1 P2 अप टू Pn, एक पार्टिकल पे एक्ट हो रहा है, सो देन ईच ऑफ देम विल प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट विच इट वुड हैव डन वाइल एक्टिंग अलोन, ठीक है, कि उसकी इफेक्ट सेम रहेगी, पर्टिकुलर जो फोर्स एक्ट हो रहा है उसकी सेम इफेक्ट आएगी इट वुड हैव डन वाइल एक्टिंग अलोन, ठीक है। सो नाउ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट थियरी, principle of superposition of forces. So it's if equal and opposite and collinear forces added to or removed from the system of forces, there will be no change in the system and position of the body, ठीक है। कि सपोज कोई फोर्स लग रहा है हमारे पास ऐसे मटेरियल पे, इक्वल एंड अपोजिट, ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट, सॉरी अपोजिट फोर्स एक्ट हो रहा है किसी भी मटेरियल पे 100 किलो न्यूटन 100 किलो न्यूटन, ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट लगेगा, कोलिनियर, एक ही लाइन में एक्ट हो रहा है, कोलिनियर फोर्सेस। सो एडेड टू रिमूव, उस पर हम ऐड करेंगे और रिमूव करेंगे, ठीक है। एट दैट टाइम देयर इज़ अ नो चेंज इन द सिस्टम ऑफ पोजिशन, कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है, वो क्या होगा, न्यूट्रल हो जाएगा। सो इट इज़ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस। P1 equal to, suppose P1 equal to 100 Newton acting at a point A, if equal and opposite and collinear forces. So suppose कोई फोर्स एक्ट हो रहा है, लाइक ये सिस्टम है, ठीक है,
इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, ठीक है। ये सपोज बी है, ये बी है और ए है, ठीक है। तो उस पर फोर्स एक्ट हो रहा है लाइक दिस, P1 इज इक्वल टू 100 न्यूटन एंड P3 इक्वल टू 150 न्यूटन एंड P1 हियर इज इक्वल टू 100 न्यूटन, ठीक है। सो P1, P2 एंड P3 इक्वल टू P2 एंड P3 इक्वल टू बिकम 150 न्यूटन। सो आर एडेड एट पॉइंट ए, पॉइंट बी पे ऐड करेंगे, देयर विल बी नो चेंज इन द पोजिशन ऑफ द बॉडी, ठीक है, कोई इफेक्ट नहीं आएगा। सो इट इज़ द कोल्ड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस, ठीक है। so this is the different type of forces like coplanar forces, concurrent forces, collinear forces, coplanar concurrent forces, coplanar non concurrent forces, non coplanar concurrent forces, non coplanar non concurrent forces like parallel forces and unlike parallel forces.